हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो आने वाले सभी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को ध्यान से देखें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय ऑप्शन ए क्लोस्ट्रीडियम कैटानी, ऑप्शन बी क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची, ऑप्शन सी डिप्थीरिया, ऑप्शन डी क्लोस्ट्रीडियम ब्लोटिनियम। राइट आंसर इज ऑप्शन डी क्लोस्ट्रीडियम ब्लोटिनियम। Clostridium tetani, this bacterium produce tetanus toxins which cause spastic paralysis in human and animal. Symptoms usually appear about 8 days after an injury but can take up to 21 days. Okay, Clostridium botulinum, the bacteria produce protein neurotoxics which cause phallus paralysis in vertebrate. Botulism is a rare but often severe disease that can be fatal. Next question. Coplic spot will develop in option A HIV, option B measles, option C mumps, option D rubella. Right answer is option B. Next question. Viral DNA is resistant to DNA of the host cell because it contains option A 5-HMC, option B 5-HMA, option C 5-CHM, option D 5-MHC. Right answer is option A. Which of the following is an example of live vaccine? Option A pertussis, option B mumps, option C cholera, option D rabies. Right answer is option C cholera. Example of live vaccines are the chickenpox vaccine, measles, mumps and rubella vaccine. It is not safe for pregnant women or people with weak immune system to receive a live virus vaccine. Next question. Triple toxoid vaccines given protection against a triple toxoid vaccine DPT. Option A diphtheria, tetanus and rabies, option B tetanus and whooping cough, tuberculosis, option C whooping cough and tetanus and diphtheria, option D whooping cough, cancer and TB. Right answer is option C whooping cough, tetanus and diphtheria. The triple typhoid vaccines are also known as diphtheria, tetanus or pertussis. Whooping cough is also called pertussis. एंड डिप्थीरिया इज ए सीरियस थ्रोट इन्फेक्शन होता है। इसमें क्या हो जाता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है, हार्ट फेल हो जाता है, पैरालाइज हो जाती है, ठीक है। और पिटोसिस में क्या होता है कि ये इसको वूफिंग कफ के नाम से भी जानते हैं। ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो कॉमन कोल्ड लाइक सिम्टम्स होते हैं इसमें, ठीक है। इसमें जो है सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। और ये भी क्या है कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, डिप्थीरिया भी। और टेटनस क्या होता है, इसमें जो इन्फेक्शन है वो हमारे नर्व सेल को इफेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हायर डोज ऑफ क्लोरोफेनिकोल अफेक्ट द यूकारियोटिक cells because option A they have TS ribosomes, option B they have mitochondria, option C they have 70S ribosomes, option D none of these. Right answer is option B they have mitochondria. क्लोरोफेनिकोल क्या होता है? क्लोरोफेनिकोल इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है ये, दैट इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरिया प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। क्लोरोफेनिकोल जो मेडिकेशंस है वो किस में यूज़ करते हैं? मोस्टली कॉन्जक्टिवाइटिस में, और ठीक है, इसमें क्लोरोफेनिकोल यूज़ करते हैं। क्लोरोफेनिकोल एक एंटीबायोटिक है एंटी माइक्रोबियल क्लास की, दैट इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। AIDS is caused by option A retrovirus, option B pion, option C rhabdovirus, option D retropoisons. Right answer is option A retrovirus. AIDS is caused by human immunodeficiency virus HIV. और एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यून deficiency
syndrome. Okay. Next question. Penicillin is a option A primary metabolite, option B secondary metabolite, option C tertiary metabolite, option D none of these. Penicillin is a secondary metabolite. Option B is right. पेनिसिलिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट आर दोज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द स्टेशनरी फेज कॉल्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. ओके. पेनिसिलिन जो है एक मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक है ये, ठीक है. ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है ये. और इस पेनिसिलिन में क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो इन्फेक्शन होते हैं उसके अगेंस्ट काम करती है, ठीक है. और जो फर्स्ट पेनिसिलिन थी वो कब डिस्कवर्ड हुई थी, ये हुई थी 1928 में. नेक्स्ट क्वेश्चन. पेनिसिलिन के बारे में जैसे और कुछ भी पूछ ले, जैसे कि जो पेनिसिलिन है वो दो टाइप की होती है, जैसे दो नहीं तो 3-4 टाइप की होती है. जैसे नॉर्मल, जैसे नेचुरल, सेमी सिंथेटिक. नेचुरल में आते हैं जैसे पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी. एक ही क्वेश्चन होता है कि पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी कौन से एंटीबायोटिक है जो ओरली दे सकते हैं, कौन से इंटरवेनसली दे सकते हैं. तो जो पेनिसिलिन जी है वो इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब होती है. सो इस तो ये है ना, पेनिसिलिन जी जो होती है वो इंट्रावेनस दी जाती है, और जो पेनिसिलिन वी है वो ओरली दी जाती है. ये ध्यान रखना, पेनिसिलिन जी तो जो है वो आईवी रूट से दी जाती है, और पेनिसिलिन वी जो है वो ओरल रूट से दी जाती है, ठीक है. और पेनिसिलिन के जो एग्जाम्पल है वो है जैसे फ्लोरोक्यूनिलीन, डाइक्लोसिलिन और बेंजाइपेनिसिलिन, ठीक है, पेप्रासिलिन. ये सब हमारे पेनिसिलिन के एग्जाम्पल है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रिजेक्शन ऑफ एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट सच एज ए किडनी ट्रांसप्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी. ऑप्शन ए इमीडिएट, ऑप्शन बी डिलेड, ऑप्शन सी एलर्जी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इमीडिएट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Listeria was disease. Option A foodborne, option B waterborne, option C milkborne, option D airborne. Listeria was a foodborne. जो लिस्टेरिया जो है वो किससे होता है, ये जो लिस्टेरिया ये फूडबोर्न डिजीज है. ये होती है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनिस से, ठीक है. इसमें क्या होता है, फीवर होता है, हेडेक होते हैं, डायरिया हो जाता है. ये लिस्टेरिया मोनोसाइटोसिस जो है कि एनारोबिक है और एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है. याद रखना किससे होता है, ये किससे कोज होता है, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. पस फॉर्मिंग फॉर्म्स आर कॉल्ड एज. ऑप्शन ए पायोडम, ऑप्शन बी पायोजेनिक, ऑप्शन सी पायरोजन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पायोजेनिक. नेक्स्ट क्वेश्चन. The ELISA technique, the antibodies are labeled by option A acidine orange, option B alkaline phosphate, option C natural red, option D bromothymol blue. Right answer is option B, alkaline phosphate. Next question. Dash is a genetic disease characterized by a total or partial inability to synthesize globulin. Option A apoptosis, option B gamma globulinemia, option C gamma globulinemia, and option D sickle cell anemia. Next question. A study involving analysis of risk of genetic defect in a family is option A genetic engineering, option B genetic counseling, option C genetic drift, option D genetic equilibrium. Right answer is option D, genetic equilibrium. Viral antigens are likely option A protein, option B glycoprotein, option C lipoprotein, option D both A and B. Right answer is both A and B, protein and glycoprotein. Suitable assay method for antibiotic is option A enzymatic assay, option B turbidometric assay, option C endpoint determination assay, and option D metabolic assay. The suitable assay method for antibiotic is endpoint determination assay. Option C is correct.
नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसा टेस्ट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑप्शन ए जॉन्डिस, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी कैंसर एंड ऑप्शन डी डायबिटीज़। एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, एड्स के लिए। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पॉपुलेशंस पीरियड्स ऑफ फॉर इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस डिजीज, ऑप्शन ए 45 to 80 days, ऑप्शन बी 15 to 35 days, ऑप्शन सी 35 to 50 days, ऑप्शन डी 5 to 15 days। लास्ट वीडियो हमने हेपेटाइटिस के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था कि हेपेटाइटिस कौन कौन से होते हैं, ए बी सी, और उनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा हमारा डी 5 to 15 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बैक्टीरियोस्टैटिक कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स एक्सेप्ट, ऑप्शन ए बैक्टीरियासिन, ऑप्शन बी क्लोरोफेनिकोल, ऑप्शन सी नोवाबिसियोन एंड ऑप्शन डी टेट्रासाइक्लिन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइंस्टोम्स आर ऑब्जर्व्ड इन, ऑप्शन ए एल्गी, ऑप्शन बी फंजाई, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी वायरस। राइट आंसर इज ऑप्शन सी प्रोटोजोआ। बीटा लैक्टम रिंग इज प्रेजेंट इन, ऑप्शन ए इरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन बी पेनिसिलिन, ऑप्शन सी टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन डी क्लोरोफेनिकोल। राइट आंसर इज ऑप्शन बी पेनिसिलिन। बीटा लैक्टम रिंग कहाँ प्रेजेंट होती है, पेनिसिलिन में। बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट इन सेवरल एंटीबॉडीज, पेनिसिलिन में, सिफेलोस्फिरिन में, मोनोबैक्टम में और कार्बिन में। ठीक है, अगर ऑप्शन में सिफेलोस्फिरिन मोनोबैक्टम आ जाए तो वो भी सही है। ठीक है, और जो ये एंटीबायोटिक होती है, इनको बीटा लैक्टम एंटीबॉडीज बोलते हैं, बायोटिक बोलते हैं, सॉरी, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ बीटा लैक्टम रिंग इन द केमिकल स्ट्रक्चर। द बीटा लैक्टम रिंग इज ए 4-member ring that is highly reactive and essential for the antimicrobial activity in the of the antibodies. Next question, antibiotic produced from streptomycins originated is, option A streptomycin, option B penicillin, option C vancomycin, option D both A and B. Right answer is ऑप्शन, जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिन से कौन कौन से एंटीबायोटिक प्रोड्यूस, ये वैंकोमाइसिन से। वैंकोमाइसिन जो होती है एक ट्राई साइक्लिक ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक होती है। ठीक है, ये ड्राइड होती है स्ट्रेप्टोकोकस ओरिएंटेटेड से। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस ओरिएंटेटेड से। और वैंकोमाइसिन है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जाती है, ट्रीट करने के लिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को। और जो वैंकोमाइसिस है ये मेनली ट्रीट करती है इंटेस्टाइन, इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, और वैंकोमाइसिन एंटीबायोटिक जो होती है प्रोड्यूस होती है स्ट्रेप्टोमाइकोस से। और अगर बात करें इसे डिस्कवर्ड कब हुई थी, तो 1955 में ये डिस्कवर्ड हुई थी। और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये फर्स्ट डिस्कवर्ड अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है। जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होती है उसमें सबसे पहले हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिन डिस्कवर्ड हुई थी। ठीक है, और जब स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो एक एंटीबायोटिक है जो ट्रीट करती है ट्यूबरक्लोसिस को। मेनली स्ट्रेप्टोमाइसिन ट्यूबरक्लोसिस में यूज़ की जाती है, उसके अलावा और भी यूजेस है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये ट्यूबरक्लोसिस में यूज़ होती है। और इट वॉज द फर्स्ट अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड एंड वॉज ओरिजिनली आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डर्मल, ओरल एंड वेजाइनल कैंडलिसिस इज, ऑप्शन ए ग्लिसफोल्विन, ऑप्शन बी एम्फोटेरिन, बी ऑप्शन सी जेनेटिन वॉयलेट, ऑप्शन डी नाइस्टेटिन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ये ग्लिसफोल्विन जो है ये टेबलेट और कैप्सूल के फॉर्म में होती है। ये एंटी फंगल होती है, हमारे जो फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं उसको ट्रीट करने में काम आती है। स्किन और हेयर और नेल्स के लिए मेनली यूज़ होती है ये। ठीक है, और जो जेनेटिन वॉयलेट और नाइस्टिन है ये भी एंटी फंगल ही है। ये यूज़ होती है इन्फेक्शन के लिए, जैसे फंगल इन्फेक्शन, ओरल कैंडलिस और वेजाइनल थर्स, इन सब के लिए यूज़ होती है। और उसके बाद फ्लोकोनाजोल भी एक ये एंटी फंगल इन्फेक्शन के लिए, जो फ्लोकोनाजोल है वो ओरल थेरेपी के लिए यूज़ होती है। ठीक है, फॉर द क्यूटेनस कैंडलिसिस।
It was the only first line agent of treatment of कैंडालिसिस। और बात करें ये एम्फोटेरिन्स बी की, तो ये जो है हमारी एंटी फंगल है जिसका यूज़ करते हैं हम मेनली HIV इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटोलिज्म मीन्स ऑप्शन ए फूड अडल्ट्रेशन, ऑप्शन बी फूड पॉइजनिंग बाय स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ऑप्शन सी केमिकल कॉन्टामिनेशन ऑफ फूड, ऑप्शन डी फूड प्रोसेसिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, chemical contamination of food. Next question, chloramphenicol is obtained from option A Streptomyces gracius, option B Streptomyces vanajolia, option C Streptomyces spirogens and none of these. chloramphenicol किससे obtained होता है? ऑप्शन बी Streptomyces vanajolia। क्लोराम्फेनिकोल जो है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। और ये क्लोराम्फेनिकोल जो है ये मेनली यूज़ होती है आई इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। कॉन्जक्टाइटिस हो जाते हैं ना, तब ये यूज़ करते हैं हम क्लोराम्फेनिकोल का, आई ड्रॉप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन ऑफ सोल्यूबल एंटीजन विद एंटीबॉडी इज नोन एज, ऑप्शन ए प्रेसिपिटेशंस, ऑप्शन बी फ्लोकुलेशंस, ऑप्शन सी एग्लूटिनेशंस, ऑप्शन डी कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशंस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए प्रेसिपिटेशंस। द रिएक्शन ऑफ सोल्यूबल एंटीजन विद एंटीबॉडीज इज नोन by precipitations. Next question, interference is composed of option A lipids, option B lipoprotein, option C glycoprotein, option D nucleic acid. Right answer is option B lipoprotein. Next question, agglutination reaction is strongest with the immunoglobulin, option A IgM, option B IgG, option C IgA, option D IgD. Right answer is option A IgM. Next question, the use of monoclonal antibodies is option A immunotherapy, option B gene therapy, option C blood transfusion, option D organ transfusion. Right answer is option A immunotherapy. Next question, hybridoma technique is used for option A monoclonal antibodies, option B polyclonal antibodies, option C both A and B, and option D none of these. Hybridoma techniques is used for monoclonal antibody. Option A is correct. Next question, test used for AIDS is option A Vidal test, option B ELISA test, option C agglutinations, option D CFT. Right answer is option B ELISA test. विडाल टेस्ट किस लिए यूज़ होता है, CFT टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है, ये हमें कमेंट करके बताएं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी एलिसा टेस्ट। एंटीबॉडी हैविंग हाई वैलेंसी इज ऑप्शन ए इम्यूनोग्लोबिन जी, ऑप्शन बी IgA, ऑप्शन सी IgD, ऑप्शन डी IgM. राइट आंसर इज ऑप्शन डी IgM. नेक्स्ट क्वेश्चन, intensity of attraction between antigen and antibody molecules is known as option A affinity, option B avidity, option C reaction, option D none of these. Right answer is option A affinity. Next question, active immunity is induced by option A infection, option B placental transfer of antibodies, option C injection of antibodies, option D injection of gamma globulins. Right answer is option A infection. Pasteur developed the vaccines for option A anthrax, option B rabies, option C chikungunya, option D all of the above. Right answer is option D all of the above. Next question, delayed type of hypersensitivity is seen in option A penicillin allergy, option B contact dermatitis, option C Arthus reaction, option D anaphylaxis. Right answer is option B. Next question, the following are used for the preservation of virus except option A freezing, option B lyophilizations, option C ether, option D formaldehyde. Right answer is option C ether. Next question, antibody formation depend on option A age of the person, option B amount of antigens, option C well-being of the person, option D all of the above.
Right answer is option D, all of the above. Age of the person, amount of antigen, well-being of a person. Next question. Local immunity is important in option A, influenza, option B, allergy, option C, polio, option D, all of these. Right answer is option D, all of these. Influenza, allergy and polio. Next question. Role of magnesium in vaccine is option A, adjuvant, option B, stabilizer, option C, conditioner, option D, all of these. Right answer is option B. Next question. Immunity is lifelong following option A, diphtheria, option B, tetanus, option B, measles, option D, yellow fever. Right answer is option C. Next question. To prepare vaccine for smallpox, the material used by Edward Jenner is option A, smallpox material, option B, chickenpox material, option C, cowpox material, option D, measles material. Right answer is option C, cowpox material. The prepare vaccine for smallpox, the material used for Edward Jenner is cowpox material. Basophils have receptor for antibodies. Option A, IgG, option B, IgA, option C, IgM, option D, IgE. Right answer is option D, immunoglobulin E. Basophils are receptor of antibodies, immunoglobulin E. The character acquired by the cell due to recombinations is option A, inherited, option B, suppressed, option C, dominating, option D, heritable. Right answer is option D, heritable. Next question. T cells are produced from option A, bone marrow, option B, thymus, option C, spleen, option D, none of these. ये प्रोड्यूस होती है बोन मैरो में और ये जो मैच्योर होती है ना वो थाइमस में होती है, तो आंसर होगा बोन मैरो. प्रोड्यूस पूछा गया है, ठीक है. टी सेल प्रोड्यूस बोन मैरो और मैच्योर इन थाइमस. ओके. और स्प्लीन का पूछे तो स्प्लीन जो है प्रोड्यूस होती है हमारी लिम्फोसाइट्स में, विच आर द टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स दैट हेल्प्स द फाइट इन्फेक्शन. और थाइमस. और अगर ब्लड का पूछे तो ब्लड कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, बोन मैरो में, ठीक है. आरबीसी. आरबीसी किस में क्या काम करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने में. और डब्ल्यूबीसी किस में क्या काम करता है, डब्ल्यूबीसी सेल्स प्रिवेंट इन्फेक्शन. और प्लेटलेट्स क्या करती है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, ठीक है. तो बोन मैरो में क्या प्रोड्यूस होता है, आरबीसी, वाइट बीसी एंड प्लेटलेट्स. और टी सेल्स बोन मैरो से प्रोड्यूस होती है, ओके. और थाइमस में क्या होता है, स्टोर होती है. और स्प्लीन क्या करता है, ये प्रोड्यूस होता है लिम्फोसाइट्स में, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑप्शन ए, टी सेल्स, ऑप्शन बी, अल्फा सेल्स, ऑप्शन सी, एनके सेल्स, ऑप्शन डी, eosinophils. NK cells means natural killer cells, okay. Antibodies are produced from, right answer is option B, alpha cell. Next question. Antibodies are produced from option A, T cells, option B, alpha cells, option C, NK cells, option D, eosinophils. एनके सेल्स मीन्स होता है नेचुरल किलर सेल्स. और एंटीबॉडीज जो होती है प्रोड्यूस होती है बी सेल से, ठीक है. और जो एंटीबॉडी बी सेल से प्रोड्यूस होती है ये एक लिम्फोसाइट्स होता है. और जो नेचुरल किलर सेल है एनके सेल्स, ये प्रोड्यूस होती है बोन मैरो से और लिम्फ नोड से, थाइमस, लीवर एंड यूट्रस, ओके. और उसके अलावा जो इस्नोफिल्स है ये एक टाइप का वाइट ब्लड सेल्स है जो हेल्प करता है इन्फेक्शन से फाइट करने में, पैरासाइट और एलर्जेंस. और जो इस्नोफिल्स है ये एक पार्ट होता है इम्यून सिस्टम का, हेल्प फाइट इन्फेक्शंस. और उसके अलावा अगर इसका पूछ ले, काउंट पूछ ले इस्नोफिल्स का, तो होता है ये 500 सेल्स पर माइक्रोलीटर, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन.